بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ دبئی ایئر شو کے دوران تیجس فائٹر جیٹ تباہ، پائلٹ بھی ہلاک، انڈین ایئر فورس نے کورٹ آف انکوائری کا دیا حکم۔ تیجس حادثہ انڈین ایویشن انڈسٹری کے لیے دھکا، کریش کے ویڈیوز وائرل، آپریشن سندور پر امریکی کانگریس کی رپورٹ کے بعد حادثہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین منصوبے میں رشیا کے قبضوں کو تسلیم کیا گیا، کییو کو نیٹو میں شامل ہونے سے روکا گیا۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں گے، زیلنسکی کا بیان، وائٹ ہاؤس نے کہا دونوں ملکوں کے لیے منصوبہ اچھا ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی دہشت، کئی جگہ حملے، کھیتوں کو نقصان پہنچایا گیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ نتن یاہو نے سعودی عرب کو F-35 جیٹس دینے کا اعلان نظر انداز کر دیا، کہا امریکہ اسرائیل کی فوجی برتری برقرار رکھے گا۔ جوہانسبرگ G20 سمٹ کے لیے تیار، ماحولیاتی تبدیلی اہم موضوع، امریکہ کے بائیکاٹ نے چوٹی کانفرنس کو ماند کر دیا۔ مودی G20 سمٹ کے لیے ساؤتھ افریقہ پہنچے، کانگریس نے کیا طنز، کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر حاضری کی وجہ سے وزیر اعظم سکون سے جا رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک تیجس فائٹر جیٹ دبئی ایئر شو کے دوران کرتب دکھاتے ہوئے تباہ ہو گیا، جس سے پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ انڈین ایئر فورس نے اس بات کی تصدیق کی، دبئی کے المکتوب انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب اس حادثے کے بعد کالا دھواں چھا گیا۔ ایئر فورس نے ایک بیان میں کہا کہ آج دبئی ایئر شو میں ہوائی کرتب بازی کے دوران حادثے میں انڈین ایئر فورس کا ایک تیجس ایئر کرافٹ حادثے کا شکار ہو گیا۔ انڈین ایئر فورس کو جانی نقصان پر افسوس ہے اور وہ تکلیف کے اس وقت غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کورٹ آف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک سنگل انجن کا ہلکا ہوائی جہاز تھا جسے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے تیار کیا تھا۔ یہ حادثہ دبئی کے وقت کے مطابق دن کے 2:10 پر پیش آیا۔ اس حادثے کی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی ہیں۔ سورسز نے بتایا کہ پائلٹ ایک نیگیٹو جی کورس ٹرن سے سنبھل نہیں پایا۔ نیگیٹو جی کورس اس تجربے کو کہتے ہیں جو مخالف سمت سے جو فورس آتی ہے اسے کہتے ہیں۔ تیجس ہوائی جہاز نیگیٹو جی فورس مشقوں کے قابل ہے اور یہ اس کی ایک خصوصیت بھی ہے۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑاکا ہوائی جہاز نیچے گر رہا ہے اور وہ گرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے۔ تیجس ہوائی جہاز میں گرنے کے بعد آگ لگ گئی، پائلٹ کی فوری موت ہو گئی۔ یہ تقریباً 2 سال میں تیجس کا دوسرا حادثہ ہے۔ مارچ 2024 میں بھی راجستھان کی جیسلمیر میں ایک تیجس فائٹر جیٹ گر پڑا تھا، لیکن اس حادثے میں پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ دبئی ایئر شو ہر 2 سال میں ایک بار ہوتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہوابازی نمائشوں میں سے ایک ہے۔ اس پروگرام کی کافی دھوم تھی اور اس کی کافی پبلسٹی ہوئی۔ ایمریٹس اور فلائی دبئی جیسی کمپنیوں نے اس نمائش کے دوران کئی آرڈرز دیے تھے۔ تیجس کے حادثے کو انڈیا کی ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک دھکا سمجھا جا رہا ہے۔ دبئی کی حکومت نے اس حادثے کو کنفرم کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی ٹیم فوری مقام پر پہنچ گئی۔ دبئی ایئر شو 17 نومبر کو شروع ہوا تھا جو 21 نومبر کو ختم ہوا۔
तेजस 2001 में सबसे पहले बनाया गया था और ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की हवाई ताकत को जदीद बनाने की कोशिशों के सिलसिले में एक अहम मकाम रखता है। 2016 में तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। सितंबर में ही मरकज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 97 इजाफी हवाई जहाज़ों को बनाने के लिए एक ऑर्डर दिया था और ये डिलीवरी 2027 में होनी थी। इंटरनेशनल मीडिया में भी तेजस के गिरने की खबरों को सुर्खियों में जगह दी गई है। यह हादसा एक ऐसे वक्त पेश आया जब हाल ही में अमेरिकन कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें दावा किया गया कि मई की झड़प में पाकिस्तान की फ़ौज इंडियन आर्मी पर भारी रही और पाकिस्तान की जीत में चाइना के हथियारों ने अहम रोल अदा किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने तेजस से पहले जो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट थी उस बारे में अब तक कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह मसला उठाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने जो 28 रुकनी मंसूबा पेश किया है उसके मुताबिक यूक्रेन में रशिया के कब्ज़ों को तस्लीम किया गया है और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से हमेशा के लिए रोका गया है। हाल ही में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंसूबे को मंजूरी दी थी। मालूम हुआ कि इस मंसूबे के मुताबिक क्राइमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क में रशिया के कब्ज़े को तस्लीम किया जाएगा। खैरसोन और ज़ापोरिज़िया पर कंट्रोल के मामले में जूं की तूं हालत बरकरार रखी जाएगी और डोनेट्स्क से यूक्रेन को वापस भेजने पर जोर दिया जाएगा। इस करारदाद में यूक्रेन से कहा गया है कि वो नाटो की रुकनियत पर दस्तूर के जरिए पाबंदी लगाए। इस तजवीज़ में यूक्रेन में 100 दिनों के अंदर कौमी इलेक्शंस पर भी जोर दिया गया। इस मंसूबे पर अमेरिका के इत्तेहादियों और यूक्रेन में तशवीश पाई जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप हुकूमत यूक्रेन में भी गाजा जैसा मंसूबा लागू करना चाहती है। यूक्रेन की हुकूमत ने बातचीत में दिलचस्पी जाहिर की है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रशिया के साथ जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के विजन के बारे में बातचीत के लिए तैयार है। यूक्रेन के लीडर ने एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कीव में अमेरिका के ओहदेदारों ने यह मंसूबा पेश किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो आने वाले दिनों में तजवीज़ों पर ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन और रशिया के लिए यह मंसूबा बहुत अच्छा है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने यह बात कही। उन्होंने इस ख्याल को रद्द कर दिया कि इस मंसूबे में मॉस्को की ज़्यादातर शर्तों को कबूल कर लिया गया है। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कई दिनों से इस समझौते पर खामोशी के साथ काम कर रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि यह मंसूबा दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है और हमारा ख्याल है कि दोनों को चाहिए कि इस मंसूबे को कबूल करें। सिलसिले को शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे में कई मकामात पर हमले किए। ये हमले अलग अलग जगहों पर किए गए। इन हमलों के दौरान खेतों को नुकसान पहुंचाया गया और घरों को आग लगाई गई। यरूशलेम में भी हमले किए गए। मकामी सोर्सेस ने बताया कि नाबलस के करीब अल्लोबान, अशरकिया और अमूरिया गाँव के दरमियान 4 रिहायशी घरों को आग लगा दी गई। मगरबी किनारे के अल-खलील या हिब्रोन में यहूदी आबादकारों ने हमला किया। उन्होंने नाबलस के करीब एक पौधों की नर्सरी पर भी हमला किया। अबू फला इलाके में एक खेत को आग लगा दी गई। कई दूसरी जगहों से भी हमलों की खबरें हैं। इस दौरान मशरक़ी अल-कुद्स के कफ़र रक़ाब में इसराइली फ़ौज ने 2 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली फ़ौज ने अलग अलग जगह धावे करते हुए कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने गाज़ा की सरहद येलो लाइन का दायरा बढ़ा दिया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि फ़लस्तीनियों को मुकम्मल हक़ दिए बगैर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया को ठोस स्टैंड लेना चाहिए ताकि वो फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के मंसूबों की हकीकत को सामने ला सके। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब को अमेरिका की तरफ से F-35 फाइटर जेट्स देने के मंसूबे को नज़रअंदाज कर दिया और कहा है कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसराइल को फ़ौजी बरतरी हासिल रहे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे के दौरान ये ऐलान किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उन्हें यकीन दिलाया है कि इसराइली फ़ौज की बरतरी बरकरार रहेगी। इसराइल मिडल ईस्ट का अकेला मुल्क है जो F-35 जेट्स रखता है और इस्तेमाल करता है। F-35 को दुनिया का सबसे जदीद जंगी हवाई जहाज समझा जाता है। वियतनाम में बारिश और सैलाब की वजह से कम 41 लोग हलाक हो गए हैं। सरकारी मीडिया में ये बात कही गई। 52,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। 5 लाख से ज़्यादा घर बिजली से महरूम हैं। हज़ारों लोगों को मुतासरा इलाकों से बाहर निकाला गया है। एक सूबे में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है जहाँ चट्टानें खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। बांग्लादेश में 5.5 शिद्दत का एक ज़लज़ला आया जिससे कम
कम से कम 6 लोग हलाक हो गए हैं और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ढाका के करीब एक ज़िले में ज़लज़ले का मरकज़ पाया गया। खबरों में कहा गया कि एक इमारत की छत और दीवारें गिरने की वजह से ज़्यादातर हलाकतें हुई। ज़लज़ले की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। ज़लज़ले के झटके इंडिया के कई इलाकों खासतौर पर कोलकाता में भी महसूस किए गए। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी हिंदू बीवी जल्द ईसाईयत कबूल कर लेगी। उनके इस बयान से इंडिया में एक बहस शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वांस ने हाल ही में ये बात कही थी जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या उनकी बीवी ईसाईयत कबूल करेगी। वांस की बीवी उषा का ताल्लुक इंडिया से है और वो एक हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। वो साउथ अफ्रीका का 3 दिन का दौरा कर रहे हैं। G20 समिट में हिस्सा लेने के अलावा वो कई आलमी लीडर से मुलाकातें करेंगे। साउथ अफ्रीका पहली मरतबा G20 समिट की मेज़बानी कर रहा है। जोहानिसबर्ग में मोदी 6वीं इप्सा समिट में भी शिरकत करेंगे। मोदी ने जोहानिसबर्ग रवाना होने से पहले कहा कि मैं इस समिट में वासुदैव कुटुंबकम और एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल के हमारे नज़रिए के मुताबिक इंडिया का नुक्ता नज़र रखूँगा। इस दौरान जोहानिसबर्ग G20 समिट की मेज़बानी के लिए तैयार है। यह मुसलसल तीसरा साल है जब G20 समिट ग्लोबल साउथ में हो रहा है। पिछले साल ब्राज़ील में और 2023 में इंडिया में G20 समिट हुआ था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस समिट का बॉयकॉट कर रहे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका की हुकूमत की सफ़ेद फामों या वाइट लोगों के ताल्लुक से बाज़ पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए बॉयकॉट का ऐलान किया है और दोनों मुल्कों के दरमियान इस बारे में तनाव पाया जाता है। साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का केस दायर किया था। ट्रंप हुकूमत ने इन दावों को रद्द कर दिया कि अमेरिका बॉयकॉट ख़त्म कर रहा है। इससे पहले साउथ अफ्रीकन अहदेदारों के हवाले से कहा गया था कि अमेरिका ने बॉयकॉट ख़त्म किया है। अलग अलग ग्रुप्स इस दौरान G20 समिट के मौके पर एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं। इस तरह के एहतजाजात से निमटने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात भी हैं। इस सिलसिले में हज़ारों पुलिस अहदेदारों को तैनात किया गया है। माशी मसाइल के अलावा यूक्रेन जंग और मिडल ईस्ट के हालात पर भी G20 समिट में गौर किया जाएगा। इस दौरान साउथ अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा ने बॉयकॉट के लिए अमेरिका पर तनकीद की और कहा कि बॉयकॉट की सियासत चलने वाली नहीं है। कई लीडर्स जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। अमेरिका और मेज़बान मुल्क साउथ अफ्रीका के दरमियान अख्तलाफात की वजह से ये G20 समिट किसी कदर फीका पड़ गया है। इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम मुद्दा माहौलियाती तब्दीली है। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप माहौलियाती तब्दीली के मसले को संजीदगी से नहीं लेते। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि वो इसलिए G20 समिट में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं क्योंकि वहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया कि क्या अमेरिका में होने वाली अगली छोटी कॉन्फ्रेंस में मेरे अच्छे दोस्त के साथ गले मिलने की सिफारतकारी होगी। हाल ही में सदर ट्रंप ने अपने कई बयानात से इंडियन गवर्नमेंट को परेशान कुन सूरत हाल से दो चार किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस जयराम रमेश ने कहा कि अगले साल G20 समिट अमेरिका में होने वाली है। उन्होंने निशानदेही की कि पिछले 7 महीनों में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 61 बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो अगले 12 महीनों में कितनी बार इस तरह के दावे करेंगे। रमेश ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इसलिए जोहानिसबर्ग समिट में जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप और अमेरिका इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी कुछ दिन पहले कुआलालंपुर में इंडिया आसियान समिट के लिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ सामना हो सकता था। अफगानिस्तान के वज़ीर कॉमर्स अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी ने इंडियन बिजनेसेस को अफगानिस्तान में सरमाया लगाने की दावत दी है और कहा है कि वहां पर तिजारत के लिए साजगार माहौल है। उन्होंने माइनिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी और टेक्सटाइल जैसे शोबों में मौक़ों की तरफ निशानदेही की। अजीज़ी 5 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। उनके साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट तबाह, पायलट भी हलाक। इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का दिया हुक्म। तेजस हादसा इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए धक्का, क्रैश के वीडियोस वायरल। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद हादसा। डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन मंसूबे में रशिया के कब्जों को तस्लीम किया गया। कीव को नाटो में शामिल होने से रोका गया।
امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں گے، زیلنسکی کا بیان۔ وائٹ ہاؤس نے کہا دونوں ملکوں کے لیے منصوبہ اچھا ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی دہشت، کئی جگہ حملے، کھیتوں کو نقصان پہنچایا گیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ نتن یاہو نے سعودی عرب کو F-35 جیٹس دینے کا اعلان نظر انداز کر دیا، کہا امریکہ اسرائیل کی فوجی برتری برقرار رکھے گا۔ جوہانسبرگ G20 سمٹ کے لیے تیار، ماحولیاتی تبدیلی اہم موضوع، امریکہ کے بائیکاٹ نے چوٹی کانفرنس کو ماند کر دیا۔ مودی G20 سمٹ کے لیے ساؤتھ افریقہ پہنچے، کانگریس نے کیا طنز، کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر حاضری کی وجہ سے وزیر اعظم سکون سے جا رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول افراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔